country is supreme, it should be supreme. So I think it will take some time, but viewers are very intelligent now. The biggest, the best part now is that you have multiple sources of information. You are not restricted to one newspaper or a news channel which comes to your house. You can go online. You have blogs. So you are being bombarded with a lot of information from all angles, from different parts of the world. So you have so many sources. Read all of them, and then decide yourself whom you think is the right channel or newspaper which is guiding you to the right path, and people who are actually trying to confuse you. And JNU is the perfect case to actually filter those channels and those journalists. Even sir, even sir, I have one thing. The second question it is related to the first question. I'm really But sorry. you will if get I'm only ta- 1,000, Yeah. okay? Yeah, of course. So I don't care about the money voucher or anything. I'm really happy that I'm having this conversation with all the editors. So the second question is related to this. So in the JNU case, there were some channels and the print media who tried to malic the image of many news channels and even tried to promote the news channels on their television. If we must have seen Ravish Kumar sir's report. So sir, in that case, why the rivalry has reached to that level where we are ready to malic any channels or any newspapers identity, and in that way we are doing anything to do that. That's very unfortunate, and that's what I was saying. All the associations within media has been polarized, as I said, and the people who are actually running media houses now, they are also acting like political netas now. So everybody has his own shop to run, and the vehicle is the channel. So they are all using channels to run their shops. And yes, you are right. During JNU, I still remember all the frontline editors were at JNU to interview Kanhaiya that day. They were waiting for their turns. Everybody wanted to interview Kanhaiya. And when people asked me that will you like to interview Kanhaiya, I said no, I will not go. Nobody from our organization went there. And I said that he does not deserve half an hour or even 2 or 5 minutes on the channel. So that is the line you should take actually. But then unfortunately, a lot of people are misguided and they have their own intentions and motives. So Suryanshi, was it a justice to your question? I really believe. Fantastic. Thank you, It's a Sudhir. long term, it involves a long term policy. And over a period of time, you will see this change happening. It has already started. Yeah. But the kind of support we got on social media and otherwise from people when we go out was tremendous. And most of the people say that we support your line, we support your editorial policies, and we still believe that you are just not supporting a one political party like BJP. In fact, we are supporting nationalism as a holistic concept. Approach. Yeah. Wonderful. Great. So, any more questions? It's really nice to be in front of all the editors. I never thought that I'll be working with media house, in my life ever. But since I've got the opportunity, so it's really great. I've always seen my father watching news, and I've never seen any news in my life. But since I'm here, like I've always followed Sudhir sir, of course I've watched DNA, but my question right now is to Dilip sir, because like I'm here for the past 5 months in this organization, and whenever I come across this guy, Dilip sir, who's sitting just in front of me, I've always admired him, like during our Sarthi session, I've seen you, like we had interactions, and I really admire him as a person. And whenever I meet him in the lift or anywhere, like I always see him smiling. He's very calm and composed and very much down to earth. I mean, seriously. Someone's completely bowled over. I must say. Completely. Smitten by your Let's give it up for She's actually smitten by her persona, man. Okay, what's your question? मैंने कहा टीआरपी बढ़ रही है क्या? No,
My question is like, despite all the challenges, you have a lot of territories under you. I mean, the whole MPCG thing. So, my question is, how do you manage your personal conduct as well as your professional challenges? I mean, this is what my question is to you. How do you कि आप कैसे balance? manage करते हैं? How do you keep a balance between your personal life and professional life? Is it? Yeah? जैसे हम लगातार चर्चा करते हैं कि अक्सर हम लोग घर पे गालियां खाते हैं, वो आपको बता नहीं सकते लेकिन ये बहुत कैंडिड कई बार होता है कि घर के लोग ये मानते हैं कि हम घर के किसी काम के नहीं हैं, और वाकई क्योंकि ज़्यादातर समय यहाँ बीत जाता है और यहाँ भी गालियाँ पड़ती हैं तो वो बोनस होती हैं। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो पहला टास्क है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं कि ये हमारे काम है, ये हमको करना है। नेचुरली आप अगर फैमिली को इग्नोर करते हैं तो एक चिंता होती है, लेकिन फिर भी हम जब सीखते हैं तो सीखने की प्रोसेस में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे खुशी है कि टीआरपी थोड़ा सुधीर सर के साथ मेरी भी बढ़ रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नए होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लीडर्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको कैसे लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो आपको मिले। जैसे एचआर ने फर्स्ट टाइम मुझे जब बताया कि आप जब एडिटर बनेंगे और एडिटर बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये दिलीप तिवारी की टीम नहीं है, ये सुधीर सर की टीम नहीं है, ये जी मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लोग हैं। मतलब इंडिविजुअल को आप टारगेट नहीं करेंगे, कोई अगर गड़बड़ भी है तो उसको साथ लेकर चलिए, उसको सिखाइए। तो मैंने पिछले 15 महीने में एज ए लीडर बहुत कुछ सीखा है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ हर दिन, क्योंकि मुझे हर इंडिविजुअल सिखाता है। मेरी टीम का इंटर्न भी है, वो नए आइडियाज़ लेके आता है। जैसे समीर सर ने कहा कि कई बार इंटर्न्स इतने अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि यार इसको तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। हो सकता है कि जगह नहीं हो तो हम उसको एक बार कहते हैं कि चलो तुम्हारा आगे देखेंगे काम करते। तो यही है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते करते घर की लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। और जाहिर है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और हर समय अच्छा नहीं होता। जो बुरा वक्त है उसमें आप ये मान के चलिए कि अच्छा वक्त आने वाला है, और जब अच्छा वक्त है तो ये मान के चलिए कि बुरा वक्त भी आएगा। हमेशा आपको एक ही रफ्तार से चलते रहना, अपनी रफ्तार मत तोड़िएगा। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ लगता है कि सीखना बाकी है, चलते रहना है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। Thank you so much, Dilip. So let's take the last question. Yes. नमस्ते सर। सर मेरा एक सवाल है कि हमें कहा जाता है कि अगर गलती हो तो माफ़ी मांग लो, तो वही अगर रूल हम मीडिया के लिए लगाए तो बेहतर नहीं होगा क्या? मैंने आज तक कभी किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगी जाए तो गलत है या नहीं है? किससे क्वेश्चन एड्रेस किसको कर रहे हैं? सबसे जो सबसे। जवाब क्या दे। नाम है आपका? मेरा नाम अर्चित मेहता है। अर्चित मेहता। जी। ओके अर्चित। अर्चित, I think न्यूज़पेपर में जब माफ़ी छपती है ना या स्टोरी छपती है तो देख आप मुझे एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल दो जो फ्रंट पेज में स्टोरी छापता है और अगले दिन 5वें पेज में इतनी छोटी सी करेक्शन छाप देता है उसकी। Absolutely. न्यूज़पेपर ऐसे करता है, ठीक है। ये कहना कि माफ़ी नहीं मांगते गलत है। मैं जी मीडिया के लिए कह सकता हूँ, जी मीडिया में जब भी कुछ गलत छापा है और जब हमारे से एरर हुई है रिपोर्टिंग में, उसको हम उतनी ही प्रोमिनेंटली दिखाते हैं जितना कि हमने स्टोरी दिखाई थी। हम बड़े क्लियर हैं इसमें। बट ये आप हो सकता है आप जनरलाइज कर रहे हो बाकी मीडिया के लिए, बिकॉज मैं तो न्यूज़पेपर में अक्सर देखता हूँ, मैंने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में काम भी किया हुआ है कि वहाँ जब बड़ी स्टोरी छपती है तो फ्रंट पेज में छप जाती है, जब उसका करेक्शन छपता है तो 5वें पेज में छोटा सा इतना आता है कि कुछ देख ही ना पाए उसको, बट आपने छाप दिया। बट टेलीविजन में हम उसको चैनल पे भी दिखाते हैं और हमने रूल बनाया हुआ है कि आप टिकर में भी चलाएंगे तो 24 घंटे चलता रहेगा, वो लूप में चलता रहेगा। आपने स्टोरी दिखाई होगी 5 बार, आप उसकी करेक्शन 24 घंटे चलाते रहते हैं करेक्शन करके। तो मतलब एटलीस्ट वो जी मीडिया डजंट होल्ड टू गुड। एज एन ऑर्गेनाइजेशन सर, जैसे कभी कभी रिपोर्टिंग में ही फंडामेंटल फ्लॉज हो जाते हैं फॉर अननोन रीजंस। सो लाइक इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स अप एंड सेज हे मैन दिस स्टोरी आई गॉट इट हॉरिबली रॉन्ग, so it's a reassurance to the citizens that we are watching the media which is responsible and they're willing to listen to the citizens. That's all. I'll tell you what, when you're reporting I mean, with my limited experience in reporting, I'll tell you कि रिपोर्टिंग में आप गलती कब करते हो? अगर आप या तो मैं किसी की साउंड बाइट नहीं ले रहा हूँ स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, तब गलती करूँगा, या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तब मैं स्टोरी चलाऊंगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं हो तो मैं किसी को अक्यूज़ नहीं करूँगा। अगर और जो मेरे एडिटर हैं, वासेंद्र हो या सुधीर हो, वो बोलेंगे भाई साउंड बाइट कहाँ है, इसमें कौन बोल रहा है कि समीर आलूवालिया चोर है,
ठीक है, कोई नहीं बोल रहा तो स्टोरी किल हो जाएगी वहीं पर। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो बोल रहा है कि समीर अहलूवालिया चोर है? नहीं है, तो स्टोरी किल हो जाएगी वहाँ पर। तो इट मे बी अ वेरी रेयर अकरेंस कि कोई ओवरसाइट हो जाए। दैट्स व्हाई देयर इज अ चेक्स एंड बैलेंस इन द सिस्टम। एडिटर होता है, उसके नीचे इनपुट एडिटर होता है, उसके नीचे ब्यूरो चीफ होता है, उसके नीचे असाइनमेंट हेड होता है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं जस्ट टू मेक। और उसके बाद आउटपुट टीम भी होती है जो डबल चेक करती है उसको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मेरे हिसाब से टेलीविजन में है जो पीसीआर में बैठता है, जिसको हम लोग सबसे कम मिलते हैं, पर उसकी वो इंश्योर करता है कि लास्ट माइल सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो आई डोंट, बट आई वांट सुधीर एंड वासेंद्र टू ऐड टू दिस लिटिल बिट। मैं ऐड वन मोर पॉइंट। जैसे अभी जो जेएनयू का इंसिडेंट हुआ था उसमें जो वीडियो गलत आई थी, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने आके माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि उससे हुआ क्या कि जब रिपोर्ट आ गई वो दो बच्चों की जान खतरे में आ गई, साफ सीधी बात थी। तो समवन हैज टू टेक सम अकाउंटेबिलिटी। जो तुम सवाल उठा रहे हो ना वो किसी एक मीडिया हाउस तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं कपिल देव से बात कर रहा था। आप सबको पता होगा कपिल देव का नाम मैच फिक्सिंग में आया था, यू ऑल रिमेंबर। और फिर बाद में साबित नहीं हुआ था। आज आप कपिल देव को मैच फिक्सर के तौर पर नहीं देखते हो, बट कपिल देव की सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो ये थी कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा, उस दिन हर चैनल की पहली लीड स्टोरी और हर अखबार का हेडलाइन यही था। लेकिन जब जांच में ये पाया गया कि उसका कोई हाथ नहीं था, तो शायद लोगों ने या तो छापा ही नहीं या बहुत छोटा सा छापा। कहने का मतलब है कि पूरे मीडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने आपको कपिल देव के मैच फिक्सिंग में शामिल होने पर गलत खबर दिखाई। एक चीज़, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मुंबई में एक मुस्लिम लड़की थी, महिला थी, उसने कहा कि मुझे मुस्लिम होने की वजह से मकान किराए पर नहीं मिला। सब चैनल्स ने चला दिया, बहुत बुरा हो रहा है। उस पर डिबेट्स हुए, प्राइम टाइम डिबेट्स। बाद में पता चला कि वो खबर सही नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया कि उस पर ये बताने की बजाय कि ये खबर सही नहीं थी, लोगों ने धीरे से उसको खबर को बस उतार लिया एंड दे जस्ट वेंट अहेड। इसी तरीके से जेएनयू में बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये आरोप लगाया कि हमारा खुद का, जो हमारे रिपोर्टर ने जो वीडियो शूट किया है वो वीडियो डॉक्टर्ड है। हम पर आरोप लगा और अखबार वालों ने उसको छापना शुरू कर दिया, वो डॉक्टर्ड है। उसके बाद उसकी जांच हुई, उसके बाद पता चला कि वो डॉक्टर्ड नहीं है, वो सही है। लेकिन उसके बाद किसी ने भी ये नहीं छापा कि हमने जिस वीडियो को डॉक्टर्ड बताया था वो असल में डॉक्टर्ड नहीं, हमसे गलती हो गई। ये सबसे बड़ा कारण है कि अब जब आप अखबार पढ़ते हो या जब न्यूज़ चैनल देखते हो तो अब आपको 100% यकीन नहीं होता कि ये बात सही है या गलत है। एंड मीडिया ओवरऑल एज अ होल, मीडिया इज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये टाइम पे अगर कोई न्यूज़ चैनल या कोई अखबार एकदम कॉन्ट्रेरी व्यू लेता है और वो अगर साफ साफ, मान लीजिए आज मैं ये कहूँ कि मैंने आपको पिछले हफ्ते एक गलत खबर दिखाई थी और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो लोगों की नज़र में उसकी इज्जत पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। 2-4 बार मुझसे ऐसा हुआ है जब मैं अपना कोई शो कर रहा हूँ और मैंने गलत फिगर्स पढ़ दिए, गलत स्टोरी नहीं दी लेकिन मैंने गलत फिगर दे दिया। मान लो मैंने धरती से चांद तक की जो दूरी है वो गलत दे दी क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे। ब्रेक आ गया और ब्रेक में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो गलत पढ़ दिया। 2 तरह के पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये कि अरे सर अब वो निकल गया एकदम, अब किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा, छोड़ो। लेकिन एक होता है कि जब आप आ रहे हो तो आपको खुद तो लगता है कि मैंने ऑन एयर एक मिस्टेक की है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है, मैं हमेशा वापस आया हूँ और मैंने कहा है कि मैंने आपको ये फिगर गलत बता दिया था, असल में ये फिगर ये नहीं है। ये माफ़ी मांगने से आदमी हमेशा बड़ा होता है, मेरा अपना पर्सनली मानना है, अदर पीपल कैन डिफर विद मी। माफ़ी मांगते रहनी चाहिए वैसे भी लाइफ में। थैंक यू सर।